Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to finish or complete this chapter now. So we can see how this story has taken turn. Like it started with the kind old couple who served a pet like as their baby, and there was another wicked old couple who uh, you know uh, ignored the kindness and just in the greed of gold they treated the animals badly, and even they like killed that pet also. Now let us continue this story. This is the part 2, part 3. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hand and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. So in this two para, we can see like how after burning all that meal which was taken from that wicked old couple, from the kind old couple, to you know make the pastry. Actually they have not taken this to make the pastry. उन्होंने पेस्ट्री बनाने के लिए नहीं लिया था, उन्होंने सोना बनाने के लिए लिया था, लेकिन सोना बना नहीं तो उसको उन्होंने तोड़ के और आग में डाल दिया, जला दिया, राइट। तो फिर बाद में उस गुड ओल्ड मैन के ड्रीम में वो डॉग फिर से आता है सपने में और बताता है कैसे उन दुर्जन लोगों ने, जो विक्ड पीपल थे, उन लोगों ने उस मिल को जो पाइन के ट्री से बनाया गया था उसको तोड़ के जला दिया है। और वो बोलता है कि आप उसके ऐसे जो जले हुए राख हैं उसको आप मिल के जो जले हुए राख हैं उसको कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करके विदर्ड ट्रीज़ के ऊपर स्प्रिंकल कीजिए, छीटिए। विदर्ड मतलब बेयर एंड ड्राई, जो पेड़ पौधे सूख चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड विदर्ड। और जब आप उसके एसिड को आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो फिर से खिल जाएगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये जो है डॉग के स्पिरिट ने बोला। फिर ओल्ड मैन जो है वो उठता है और जा कर के वो अपने विकेड नेवर्स के घर के पास जा कर के देखता है, तो वो देखता है कि सच में वो लोग जो दोनों जोड़ी है, विकेड ओल्ड कपल जो है, वो लोग वहाँ पे जहाँ पे आग जलाया था उसी के पास में बैठे हुए हैं, और फिर वहाँ धुआं उठ रहा है और वो लोग उसको ऐसे जला रहे हैं। और फिर वो लोग उस आग में अपने हाथ को भी वो सेक रहे थे, वार्म कर रहे थे। फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे गया और जाने के बाद जो है उसने एसेस को कलेक्ट किया। Now the good old man humbly asked for the ashes. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blues until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees blossom.
The kind old man hearing that his lord, the kind old man hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. So now in this two para we can see uh, जब गुड ओल्ड मैन जो था वो एसेस कलेक्ट करने जाता है, तो वो जो विकेड जो ओल्ड कपल था वो कैसे अपना नाक बहुत चढ़ा करके उसको और स्कॉल्ड करने लगता है, उसको सुनाता है, उससे ऐसा बिहेव करता है जैसे मानो वो एक थीफ है और वो एसेस को चुराने आया है, लेकिन फिर भी वो जो है उनको एसेस को कलेक्ट करने देता है और वो उस एसेस को एक बास्केट में कलेक्ट करते हैं। फिर वो जब गुड ओल्ड मैन वापस आता है तो अपनी वाइफ के साथ वो गार्डन में जा कर के और चेरी ट्री जो कि बिल्कुल बेयर हो चुका था, चूँकि ये विंटर का सीज़न था, तो उस विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर जो है एसेस को एक चुटकी, पिंच मीन्स एक चुटकी एसेस जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल करता है और एक जादू सा होता है। जैसे ही वो उस एसेस को स्प्रिंकल करता है तो वो स्प्राउट करने लगता है, वो फूलने फलने लगता है, खिलने लगता है, और वो तब तक स्प्राउट ब्लिज्म होता है जब तक कि उसके ऊपर एक क्लाउड पिंक सा मतलब फूल ना खिल जाए और चारों तरफ हवा में जो है परफ्यूम जैसा मतलब महसूस होता है। हवा जो है बिल्कुल मनमोहक हो जाती है। उसके बाद यह जो समाचार है, ये न्यूज़ जो है पूरे गांव में, इन होल विलेज इट फील्ड, सारे गांव में फैल जाती है। सारे लोग इस वंडर को देखने के लिए, आश्चर्यजनक चीज़ को देखने के लिए दौड़ते हैं अपने घर से, वो लोग आते हैं। और इसी बीच ये जो कोविटस कपल है उसको भी ये न्यूज़ मिलता है और वो लोग भी जो है इतना सुनने के बाद जो बचा हुआ एसेज है उसको, मिल का जो बचा हुआ एसेज है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको रख लेते हैं, ताकि बाद में जो है वो ट्री को ब्लूज़म करने में मदद करेगा। उसके ऊपर स्प्रिंकल करके वो भी ट्रीज़ को ब्लूज़म करेंगे। नाउ द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, इन दिस पैरा ये जो काइंड ओल्ड मैन है वो ये सुनता है कि उसके भगवान जो है डैमियो उस रोड से गुजर रहे हैं, तो वो उनके पास जाता है, उनके पास उनसे मिलने की कोशिश करता है और वो अपने गांव के रास्ते से होते हुए साथ में उसने जो है वो बास्केट भी रखा है जिसमें वो एसेज पड़ा हुआ है, ले करके वो गांव के रास्ते उस ट्रेन की तरफ जाता है जिस ट्रेन पे डैमियो जो है, जो गॉड है, उस ओल्ड कपल जो गुड ओल्ड कपल है उसके उनके पास जाता है, लेकर के उस ट्रेन पे चढ़ता है। He climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. फिर वो वहाँ पे एक ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री खड़ा वहाँ पे था, उसी के ऊपर वो चढ़ करके रास्ते में वो ओल्ड चेरी ट्री था, उसी ट्री पे चढ़ के रास्ते में जो है वो देखने की कोशिश करता है, मिलने की कोशिश करता है डैमियो से। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोज इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. In this para, the narrator says कि उन दिनों एक ऐसा रिवाज था, कस्टम मतलब रिवाज, रीति रिवाज, कि जब भी उनके लॉर्ड जो है उस रास्ते से पास हो तो जितने भी उनके लॉयल पीपल हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल चुपचाप हो करके विंडोज़ के ऊपर खड़े हो जाएं और विंडोज़ को बंद कर दें और पेपर से उसको बिल्कुल सील कर दें, पैक कर दें, बंद कर दें
और ये इसलिए कि मतलब उनका जब प्रोसेसन निकले, जब वो वहाँ से जाएं, तो उनको किसी तरीके का जो है कमेंट ना मिले, और अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए उनको जो है प्रोस्ट्रेट करना होगा। प्रोस्ट्रेट करना का मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स, जैसे हम साष्टांग दंडवत करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर दैट इफ़ वी आर गोइंग टू द छठ पूजा, एंड जो भी इंसान चाहे लेडी या जेंट्स जो छठ व्रत करते हैं, तो वो रास्ते में प्रोस्ट्रेट करते हुए जाते हैं। उसी तरीके से जब डैमियो गुजरे, तो लोगों को, जो लॉयल पीपल है उनके, जो उनको मानने वाले हैं, उनको प्रोस्ट्रेट करना पड़ता है, और तब तक उनको लेटा रहना पड़ता है जब तक कि प्रोसेसन वहाँ से चला ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. जैसे ही ट्रेन उस चेरी ट्री के नज़दीक आ रहा होता है, तो एक लंबा सा व्यक्ति जो है वो सबसे आगे चल रहा होता है, और वो अनाउंसमेंट करता हुआ जाता है कि सारे लोग अपने नीज़ पे झुक करके साष्टांग दंडवत होकर के उनको प्रणाम करते हुए बैठे रहें, क्योंकि प्रोसेसन जो है अभी यहाँ से पास होने वाला है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन काउट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. जब ट्रेन वहाँ पे पास आता है, तो अचानक से जो उस प्रोसेसन का लीडर जो होता है, वो देखता है कि एक इंसान जो है, बूढ़ा इंसान जो है, ट्री के ऊपर खड़े होकर के उनको देख रहा है, जो कि उनके रीति रिवाज के खिलाफ था। ऐसा वो नहीं कर सकते थे, लेकिन चूँकि वो उसको गुस्से में डांटना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वो काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड फेलो है, तो उसने उसको इग्नोर करने का सोचा कि ओके जाने दो, अगर ऐसा है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते हैं। बट द गुड ओल्ड पर्सन मैन जो था, वो उसने देखा जैसे ही डेमियोज़ का जो कंपार्टमेंट जिस डब्बे में वो बैठा हुआ था वो गुजरने वाला था, तो उसने एक चुटकी एसिड जो है अपने बास्केट से निकाला, और उस बिदर ट्री जो चेरी बिदर ट्री था उसके ऊपर उसने छिड़का, और जैसे ही उसको छिड़काव करता है तो वो बर्स्ट करता है और ब्लूम करने लगता है, वो खिलने लगता है, फलने फूलने लगता है। The delighted daimyos ordered the train to be stopped and go out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered the presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joys with his dear old wife. तो जैसे ही वो चेरी ट्री ब्लूम करने लगता है, तो इस बात से डैमियो जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं देख करके, और उसी वक्त वो जो है ट्रेन को रोकने का आदेश देते हैं, और उस आश्चर्यजनक चीज़ को देख करके काफ़ी खुश होते हैं, और उस ओल्ड मैन को अपने नज़दीक बुलाते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, और अपने साथ में कुछ प्रेजेंट्स लेके आते हैं, उपहार लेके आते हैं, जो कि सिल्क रोब्स होता है, स्पंज केक होता है, और कुछ फैंस होते हैं, सब उसको उपहार के तौर पे देते हैं, उस ओल्ड गुड मैन को देते हैं। और फिर बाद में उसको जो है अपने जमात में बुलाते हैं। कैसल इज़ लाइक देयर ग्रुप, उसको उस जमात में जो है इनवाइट भी करते हैं। नाउ इतना कुछ होने के बाद जो है ओल्ड मैन अपने घर वापस जाता है, काफ़ी हैप्पीली, काफ़ी खुश होकर के अपने घर जाता है, और अपनी सारी खुशी जो है अपने डियर वाइफ, ओल्ड वाइफ के साथ में शेयर करता है। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particles. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife.
such sneezing and choking. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ass's basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus, the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. नाउ जब ये ओल्ड विकेड मैन जो है, ग्रीडी, जो लालची नेबर है, उसका पड़ोसी है, जब वो ये बात सुनता है तो वो भी सेम चीज़ करना चाहता, सेम तरीके से डैमियो को खुश करना चाहता, और वो भी बचा हुआ जो एसेस है ले करके, और एक हाईवे के रास्ते वो वहाँ से गुजर चुके होते हैं, आगे जा चुके होते हैं, तो वो आगे गांव से थोड़ा बढ़ के, और वहाँ पे एक पेड़ होता, उस पर वो खड़ा हो जाता, जिस तरीके से गुड ओल्ड पर्सन जो था, व्यक्ति जो था खड़ा था, उसी तरीके से खड़ा हो जाता है, और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जैसे ही उनका वैन यहाँ से गुजरेगा वो एसेस को स्प्रिंकल करेगा और उसको भी उपहार मिलेंगे और शाबाशी मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति सबसे आगे अनाउंस करता चल रहा था कि नील डाउन, नील डाउन, तो वो नील तो होता नहीं, वो भी पेड़ पे खड़ा रहता है और चेरी ट्री के ऊपर खड़ा रहता है। तो वो व्यक्ति उसकी बात को अनसुना कर देता है, ओल्ड विकेड मैन जो है उस व्यक्ति की बात को अनसुना कर देता है। और जब वो वैन, डैमियो का वैन उस जगह पे आता है जहाँ पे ओल्ड विकेड मैन जो है खड़ा होकर के एसेस हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, वहाँ पे जैसे ही उनका वैन नज़दीक आता है वो एसेस को स्प्रिंकल करता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो एसेस है वो चेरी ट्री पे स्प्रिंकल करने के बाद ये चेरी ट्री ब्लूम तो नहीं करता है, उसके बजाय ये क्या होता है कि हवा चल रही होती है और उस हवा के झोंके के कारण जो है वो एसेस, जो राख है, वो उड़ करके और उसके फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटी छोटी जो उसमें राख के जो कण होते हैं, वो उड़ करके और नाक और आँख में चला जाता है। वो डैमियोज के नाक और आँख में चला जाता है, उसकी वाइफ भी साथ में रहती है, उसके नाक आँख में भी चला जाता है। इस बात से जो है इसके बाद जो है उसको स्नीजिंग होता है, चोकिंग होता है, छींक आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। और इस बात से जो है उस प्रोसेसन में डैमियो के साथ जो लोग चल रहे होते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसको जो है पकड़ के लाते हैं, काफ़ी पीटते हैं उसको, उससे एसेस जो है उसका सीज कर लेते हैं। एंड इट हैज़ बीन रिटन दैट उसको कॉलर से पकड़ के खींच के लाया जाता है पेड़ से नीचे, और उसको काफ़ी पीटा जाता है, और इतना पीटा जाता है इतना पीटा जाता है जैसे कि अधमरा करके छोड़ दिया गया हो। फिर उसके बाद वो ओल्ड विकेड मैन जो है वो मर जाता है वहीं पे मिट्टी में। और इस तरीके से उस जो गुड ओल्ड कपल था उसको, उसके डॉग को शांति मिलती है, उनको न्याय मिलता है, और इस तरीके से जो है वो दोनों ओल्ड गुड कपल जो थे बाकी आगे की ज़िंदगी जो है काफ़ी खुशीपूर्वक व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। Now dear student, I believe and I hope that you have understood this chapter completely. The story is completed, and in the regard of this question answer exercises, you can go through the PDF file which is already available on different websites. And if you are still having any problem, you may ask me privately. I'll help you out in the exercises also. Now dear student, we'll meet next time with new chapter and new topic. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you.